اب ثاقب نثار صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس ججمنٹ میں سے ان کے پسندیدہ کرکٹر کے فیض یاب ہونے کا وقت آ رہا ہے. اگر نواز شریف اپنے بچوں سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر اپنے اثاثہ جات میں اپنے نامینیشن پیپرز میں نہ ظاہر کرنے کی بنیاد پر نااہل ہو سکتا ہے تو اس نے تو بالکل جھوٹ بولا ہے. اس نے تو صاف واضح جھوٹ بولا ہے کہ اس نے وہاں سے تحائف لیے, توشہ خانے میں پیسے بھی جمع کرائے اور پیسے جمع کرانے کے بعد اس نے وہ تحائف ظاہر ہی نہیں کیے. تو اب وہ ثاقب نثار کا جو فیصلہ ہے, جو کہ جب یہ بھاگتا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان گیا تھا, اب وہ فیصلہ ثاقب نثار کا جو ہے اب وہ فیصلہ عمران خان پہ بھی لگے گا اور پوری قوم بھی دیکھے گی کہ نواز شریف کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کس طرح لاک آؤٹ کیا گیا تھا. پوری قوم یہ دیکھے گی اور تحریک انصاف کے کارکن بھی یہ دیکھیں گے جو اس وقت نعرے لگاتے تھے اور مٹھائیاں بانٹتے تھے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے. اب وہ بھی دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ بندہ کس طرح ہوتا ہے. اور ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ, عمران نیازی کا تو ٹیکنیکل گراؤنڈ بھی نہیں ہے. اس نے تو جھوٹ بولا ہے, اس نے تو اپنے حلف پہ جھوٹ بولا ہے. اگر اپنا گوشوارہ نکال کے میں چیلنج کرتا ہوں, عمران نیازی مجھے عدالت میں لے جائے, میرے خلاف دعویٰ دائر کرے حتک عزت کا, اگر میں یہاں پہ کوئی بات جھوٹی کر رہا ہوں. اور اگر عمران خان میں ہمت ہے تو آئے الیکشن کمیشن, اگلی تاریخ پہ پیش ہو, اپنا وکالت نامہ جمع کرائے اور رسیدیں دیں اس قوم کو کہ کس طریقے سے 3500 روپے کا ٹی سیٹ ہے یار, مالی بھی ٹی سیٹ, جو اگر آپ پاکستان میں کسی غریب آدمی کو بھی وزیر اعظم بنا دیں, غریب کا بھی حق ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ, اگر اس کو بھی وزیر اعظم بنا دیں گے تو 3500 روپے کا جو ٹی سیٹ ہے وہ بھی بخش دے گا. مجھے یہ بتائیں, میں آج اسیسمنٹ پڑھ رہا تھا کہ 2018 میں انہوں نے ایک موبائل فون لیا, آئی فون, اس آئی فون سے توشہ خانہ کی قیمت 35,000 روپیہ لکھوائی ہوئی ہے. آئی فون جو لیا توشہ خانہ کے ریکارڈ میں اس کی قیمت 35,000 ہے. مجھے یہ بتائیں 2018 کا ریکارڈ نکلوائیں, یہ جو صادق کبین بنا پھرتا ہے 2018 کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں, آئی فون اس وقت 1,25,000 روپے کا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف نے دباؤ ڈال کے توشہ خانہ پہ, دباؤ ڈال کے توشہ خانہ کے سٹاف کے اوپر, ملازمین کے اوپر اپنی مرضی کی ایویلیویشنز کرائی. اور میں سمجھتا ہوں اس کو, میں تو کہتا ہوں یہ ٹکے ماری ہے, اس کو چندی کا چور کہنا چاہیے. چندی یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چوریاں. 80 لاکھ روپے کے قریب اس نے تحائف ایسے حاصل کیے ہیں جن کی قیمت 30,000 روپے سے کم ہے, جو کہ کسی بھی وقت کے حکمران کو مفت میں دی جاتی ہیں. مثالیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تے لے کے جانے ٹی سیٹ, یہ اس بندے کا اصل چہرہ ہے. اور انشاءاللہ اب ہمارا جو یہ فیصلہ ہے, یہ آئین کی مدت اس پہ 30 دن ہے. آئین کی شک 63 سب آرٹیکل 2 کے نیچے اس چیز کا فیصلہ 30 دن کے بیچ میں ہونا ہے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا پاکستان کی عوام کے آگے. اب جو یہ سو کالڈ جس کو سرٹیفکیٹ دیا, آج میں سوچتا ہوں جنہوں نے اس کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ بھی ذرا اس کی حرکتیں دیکھیں کہ جس کو صادق امین آپ کہہ رہے تھے, اس نے نہ ٹیبل میٹ چھوڑا, نہ اس نے قالین چھوڑا, نہ اس نے گلاس چھوڑے, نہ اس نے ٹی سیٹ چھوڑے. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لے گیا, کروڑوں روپے کی گھڑیاں تو دور کی بات ہے. تو یہ اس بندے کا اصل چہرہ ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ سب معاملات, یہ سب چیزیں پاکستان کی قوم کے آگے رکھیں, اور اس چیز کو پاکستان کی قوم میاں نواز شریف کو جس طریقے سے 2018 کے فیصلے کے بعد آج تک پاکستان سنبھل نہیں سکا. نواز شریف کو جب سے نااہل کیا گیا اس دن سے لے کے آج پاکستان کی معیشت کا حال دکھا دیں. اس ایک فیصلے کے بعد آج تک پاکستان سنبھلا نہیں. تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ جو ماضی کے گناہ ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, ماضی کے گناہ کو درست کیا جائے, اور دوبارہ سے جو لوگ جن کو آپ نے پاکستان کے سیاسی عمل سے باہر نکال کے پھینکا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ, جن کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں, اور وہ ایسے فیصلے جو کہ قانون کی تاریخ میں قانون کے طالب علم شرم سے پڑھتے ہیں, ان فیصلوں سے اب باہر نکلا جائے. پاکستان کی قوم کے اندر پاکستان کو اپنے حقیقی لیڈرز جو ہیں, پاکستان کی قوم کو وہ حقیقی لیڈرز ملنے چاہیے, اور اگلے انتخابات میں ہر بندے کو انتخابات, ہر قائد کو, میاں نواز شریف کو بھی پاکستان واپس آنا چاہیے, اور وہ آئیں گے انشاءاللہ اور اگلے انتخابات میں حصہ لیں گے. اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب
इंतखाब के अमल में शामिल नहीं होंगे, मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई नहीं करेंगे, तो हम ये समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन 2023 का इलेक्शन भी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, चौधरी परवेज लाई जिंदाबाद, क्रिस्टल महसन खान नवाज रांझा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से कि मोहसिन रांझा साहब ने तमाम बातों पर रोशनी डाली है, और चूँकि इस में जो पटिशनर्स हैं हमारी पीडीएम की, वो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें से तमाम पार्टीज़ के जो एमएनएज़ हैं वो इसमें पटिशनर हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैं भी पटिशनर हूँ, और मोहसिन रांझा साहब ने पूरी रोशनी डाली है कि इस ईमानदार ने किस तरह से मुल्क को लूटा। ये तो वो एक केस है जो कि तोशा खाना का एक केस है, एक करप्शन है जिसमें कि ये एक्सपोज हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला ये ना सिर्फ एक्सपोज हुआ है, अब ये कानून की गिरफ्त में आएगा। जो अपने आप को पाकिस्तान के आइन से बालातर समझता है, जो अपने आप को पाकिस्तान का लाडला तरीन सियासतदान समझता है, जो अपने आप को पाकिस्तान का समझता है कि वो पाकिस्तान के कानून और आइन का पाबंद नहीं है, पूरे पाकिस्तान को और हर सियासतदान को ये भाषण देता था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जब कानून ने इसकी तलाशी शुरू की है तो ये घबरा गया है, दूसरों को कहता था कि घबराना नहीं है। जब इसकी तलाशी शुरू की गई है तो ये घबरा के अब मैदान से भाग रहा है। आप देखें आज ये और इसके हवारी जो हैं वो कानून को फेस नहीं कर रहे। सूरत हाल ये है, इसके करप्शन, ये तो अभी तोशा खाना केस है, इसके बाद तो अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है, अभी तो म्यूजिक शुरू हुआ है, अभी तो आपका सुनामी ट्रीज वाला केस ओपन नहीं हुआ, अभी आपका बीआरटी पिशावर वाला स्टे जिसपे आप स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते रहे वो भी केस शुरू नहीं हुआ, अभी आपका जो आपने कोरोना का अरबों रुपया बाहर के मुमालिक से पाकिस्तान में आया था, अभी वो केस भी आपका शुरू नहीं हुआ। अभी तो एक बहुत बड़ी लाइन है भाई, आप तो 90 दिन के रिमांड लेते थे, और आपके जो अरस्तू हैं वो 2 दिन और दूसरों की सेहत पर बात करने वाले 2 दिन के रिमांड पर बेहोश हो रहे हैं। ये आप आपके पूरे पाकिस्तान की आंखों के सामने है। मुझे ये बताएं, ये सादिक और अमीन इस केस के 2-3 पहलू हैं। मैं बासियत एमएनए आपको बता रहा हूँ कि हमने हर साल इलेक्शन कमीशन में एमएनए बनने के बाद गोशवारे जमा कराने होते हैं, जिसमें हमने ये डिक्लेयर करना होता है कि इस साल के अंदर हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, हमारे एसेट पिछले साल कितने थे, इस दफा कितने हैं। तो वो डिक्लेरेशन जो इसने की, उसमें जो इसने डाका तोशा खाने पे डाला, उस डाके के बाद इसने क्या काम किया कि उसको डिक्लेयर ही नहीं किया, और कौम को ये कहता था, जब हमने कहा तलाशी दो तो ये कहता है तो जनाब इसमें तो मुल्की वो क्या बात है कि जी सिक्योरिटी का मसला है, और ये वो राज थे जो आज यहाँ हो गए। इंशाअल्लाह ताला ये इस केस का 30 दिन में फैसला होगा, और वो लोग भी गिरफ्त में आएंगे कि जिन्होंने असेसमेंट इसकी कम की। मुझे ये बताएं कि कौन सा, मैं आज पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा आईफोन है जो नया हो और 35,000 में हो। 35,000 किस वक्त कीमत थी? 2018 का मॉडल है। अभी आप साफी खड़े हुए हैं, तमाम दोस्त, पूरा पाकिस्तान का मीडिया देख रहा है, आप गूगल पे सर्च करें। तो इसी तरह से कीमती घड़ियाँ जो औने पौने ये लूट के लेकर चला गया और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया, और साथ शर्म आनी चाहिए इसको कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि वो चीज़ें इसने जाकर बेची, पहले बेची और बाद में उनके पैसे जमा करवाए। और वो जो मुल्की सरबराहान थे जिन्होंने वो तहफ़ दिए, उन्होंने इमरान अहमद न्यादी वल्द इकरामुल्लाह न्यादी को नहीं दिए थे, उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को दिए थे, अगर ये सिलेक्टेड थे उस वक्त। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये तोशा खाना केस जो है ये इस मरले की पहली कड़ी है। इसके बाद अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्में तो असल अब चलेगी, अब पता चलेगा। जिस तरह से ये डस्का के मकाम के ऊपर वोट चोरी करते हुए पकड़ा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको वोट चोर का सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड वोट चोर डिक्लेयर किया। इसी तरह से अब ये पाकिस्तान का खजाना लूटने वाला ये नौसर बाद अब इंशाल्लाह आवाम के सामने इसका असल चेहरा आएगा कि इसने पीआरटी पिशावर से कितने अरबों खाए थे,
जिस तरह से कि फॉरेन फंडिंग केस में आपको पता चला ना कि कितना पैसा है, अरबों में कितनी मालियत है, कितने खुफिया अकाउंट, इसके दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो सारे अकाउंट बता दिए थे। अब इसका असल चेहरा पाकिस्तान की आवाम के सामने आएगा और अब इंशाअल्लाह ताला हम इसको कानून की गिरफ्त में लाएंगे, हम इसको आवाम के कटहरे में भी लाएंगे, आइन के कटहरे में भी लाएंगे, कानून के कटहरे में भी लाएंगे और आज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की अदलिया का, पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का हाथ इस इमरान अहमद न्याजी लाडले के गिरबान तक पहुंचेगा। अल्लाह ताला के फजल से। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो कैसे आप उन्हें न्याय करेंगे? वो तो उन्होंने ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन के कैसे इख्तियार उनके ऊपर? देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन जब तक उनको डी नोटिफाई नहीं करेगा तो वो अभी इस वक्त रुकन कौमी असम्बली है। ये एतराज़ उनके वकील साहब ने भी उठाया था और इलेक्शन कमीशन ने इस एतराज़ को इस स्टेज के ऊपर इब्तदा तौर पे उसको मानने से इनकार करने का। आप रुकन कौमी असम्बली है, इसीलिए आप यहाँ पर पेश हुए। दूसरी बात ये है कि ये जो तोशा खान से वो तो वो भेज चुका है, उसने आप खुद भी कह रहे हैं कि वो भेज चुका है, तो आप किस तरीके से उसमें जाहिर करेगा अपने सर्टिफिकेट? देखिए, वो अगर बेच चुका है तो फिर तो उसको जाहिर करना पड़ेगा। नहीं, मतलब उसकी रकम जाहिर होती है, बाकी देखिए रकम भी जाहिर करनी पड़ेगी, तो रकम तो नहीं जाहिर की, यही तो पॉइंट है ना रकम जाहिर की है के अंदर उसने पेश वो लिखना था, डिक्लेयर करना था, वो नहीं की। एक चीज उसने खरीदी और बेची, जब उसने खरीदी तो उसको चाहिए था ना कि ये मैंने इतने में खरीदी है तो वो उसको डिक्लेयर। अच्छा, कुल कितनी रकम जाहिर नहीं की गई? देखिए, ये तकरीबन जो है 2019 18-19 का जो गोशवारा है उसमें तकरीबन 12 करोड़ के करीब रकम जो उसने जाहिर नहीं की। फिर आगे से 22 तक वसूल करते रहे चीज़ें और 22 तक तकरीबन ये 23-24 करोड़ रुपए की अशिया हैं जो उन्होंने तोशा खाना से वसूल किए लेकिन जाहिर नहीं की। तो ये मामला आप नैब को नहीं भेज रहे या? देखिए, ये मामला जो है इसकी इलेक्शन एक्ट के नीचे भी 3 साल कैद है। ये करप्ट प्रैक्टिस तस्वर किया जाता है कि अगर आप कोई अपना गोशवारे में से चीज़ छुपाते हैं और बदनीति होती है तो उसकी 3 साल सजा है, 1 लाख रुपया जुर्माना है और 5 साल की नाअहली है। ये इलेक्शन एक्ट के बीच में सजाएं हैं। इसके अलावा ये तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, जेल भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन? ये देखें जी, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है इलेक्शन एक्ट के नीचे। तो ट्रायल कोर्ट है ही नहीं। देखिए, ये अगर फैसल वाडा वाला केस यहाँ पे फैसला हो सकता है तो कुछ ऐसे मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो वक्त आने पे जब हमारी बहस होगी हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि साकिब निसार के फैसलों से फैज़ याब होने का आपको तो पता वक्त आ रहा है। साहब, ये केस नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से कैसे मुख्तलिफ है? उन पर जो गाड़ियाँ सस्ते दामों में बेचने का इल्जाम है। देखिए, वो तो केस जो है 20% दे के चीज़ लेने का तो इशू ही नहीं है। चीज़ का इशू है कि आपने चीज़ें छुपाई हैं। वो तो चीज़ें इन्होंने नैब के केसेस बनाए और वो नैब के केसेस भी नहीं बनते और ये कहता है कि 20% चीज़ें जो हैं मैंने 20% अदायगी की। हमारा तो ये मामला ही नहीं है। हमारा तो ये मामला है कि तुमने पैसे लेके अदायगी करके तुमने छुपाई क्यों है, अवाम के सामने क्यों नहीं लाया और फिर तुम्हारी कैबिनेट डिवीजन जाके हाई कोर्ट में ये जवाब देती रही कि कौमी सलामती को खतरा है इसलिए ये चीज़ें नहीं देनी। आपके एक साफ़ी भाई ने रिट की थी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें जस्टिस मियां गुल ने ऑर्डर किए थे, उसी वक्त तो ये चीज़ें निकली थी। उससे पहले तो ये इमरान न्याजी साहब चीज़ें दबा के बैठा हुआ था। बैरिस्टर साहब, आप पिछले 15 साल से जिन जिन लीडरों ने तोशाखाना से गायब लिए हैं उनका रिकॉर्ड अवाम के सामने बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, हमें तो कोई इतराज नहीं। किसी ने इनका मसला छुपाने का है, आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए, हुकूमत रखेगी, बिल्कुल रखेगी, बिल्कुल रखेगी। ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है कि आप सारा चीजें करें। 15 साल का रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। आप एक बात ज़हन में रखिए कि ये वो केस नहीं है। ये वो फर्क हबीब साहब जिस तरह आके पिछली दफा कहते थे कि मुस्लिम लीग नून भी अपना बताया कि पैसे कहाँ से आए, तो आपने इस चीज में नहीं जाना। इमरान का केस नवाज शरीफ के साथ अगर वो कहता है कि जी तोशा खाना से जरदारी साहब की बात करता है, वो चीजें डिक्लेयर्ड हैं। ये मिस डिक्लेरेशन है, कंसीलमेंट है, चोरी है कि आपने चीजें ली और आपने छुपाई। क्योंकि आप कहते थे मैं सादिक अमीन हूं, क्योंकि आप पूरी कौम का एहतसाब करते थे, आप कहते थे बाकी सब चोर हैं, मैं ठीक हूं। अब आपकी अपनी चोरी पकड़ी गई तो आपको तकलीफ हो रही है। बहुत शुक्रिया।